Hey guys, and welcome to Nerdcast, where we nerd out about various topics. Today we are going to discuss peer pressure. So talking about peer pressure, do you have any stories of your friends or yourself that have suffered from peer pressure as such? Um, the Uh, the example that I remember vividly is I had a friend in campus, and he's obviously brilliant because he got into IIT, but the thing is he was really into dramatics and acting as a whole, and he was a terrific actor, but he was forced from his parents to get into engineering field and study, and what you call his academics also lacked because of the same thing, because his passion and his like his actual passion lied elsewhere. And I could see, like, most of the time in the dramatic club in the campus, I could see him doing really great in all those dramas and everything. And then I that he had a potential future, but you know the pressure from his parents to be into something that he didn't like to be, kind of, it actually hampers upon the personality as a whole also. Like, if you are doing hmm, something which what you're passionate about, you have that sense of confidence, and that sense of that you are you. But yeah, when you're not doing that what you're passionate about, you feel like, hey, you are not the best in that field. And when you don't have that confidence, your personality falters down, I would say. true. Yeah. What about you? Pranit, Yeah, I don't have a personal stories for such because I never faced any peer pressure from family or society. But I have few friends that those are like they wanted to be journalists, but they're now doing engineering just because of the peer pressure that their families won't allow them to do this or that. Just the same example as Guru stated. I guess most of the engineering colleges might have seen these stories जहाँ पे लोगों को कुछ और बनना था एंड इंजीनियरिंग में आ गए क्योंकि दिस इज सेफर ऑप्शन फॉर देम एज ऑफ देयर फैमिली इज थिंकिंग. See, it started with me also कि जब मैं engineering में आया, but they gave me subjects like electronic, ये वो. First year I thought like कि start ही computer से होगा, but start computer से नहीं हुआ, basic courses से हुआ. So that was like मेरा फिर थोड़ा सा first year भी थोड़ा ups and downs में गया, but I was like okay, चलता रहता है. But जब मेरा field आया computer का, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया बिकॉज आई यूज टू नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. कुछ चीजें नहीं आती थी बट वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे आ गई बिकॉज आई वाज सो मच इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड. और बाकी लोगों को कैसा है कि रियलाइज कब होता है जब उनको नहीं जम रही होती है चीजें. सो या लेट्स से अ गाय गोज टू कंप्यूटर साइंस बट उसको कोडिंग ही नहीं जम रही है, तो उसको तब रियलाइज होता है कि साला अपन ने फॉर्म फॉर्म में आके ले तो लिया पर अभी अपने को वो जम नहीं रहा है. या तो तब वो सोचने लगता है कि यार व्हाट, अगर तू इंजीनियरिंग नहीं करता और तू कुछ भी नहीं क्या करता तो यार. तू क्या करता है, तू किस में बेस्ट है. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट गाय आस्क हिमसेल्फ इज लाइक विच इज द थिंग दैट आई एम बेस्ट इन एक्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट स्टफ. फिर जाके वो पैशन की बात आती है. So जैसे कि the friend who is doing engineering, as you said, who might be getting a doubt that he might not be a good engineer, but एक certain point पे आता है कि एक passion कर सकते हैं, क्या passion follow कर सकते हैं. आई गेस जब हम लोग इसकी वजह से होता है कि इंजीनियरिंग हम लोग चूज करते हैं बिकॉज वही फॉर्म फॉर्म में आके बिकॉज इट्स सो एक्साइटिंग एंड पीपल आर डूइंग इट बिकॉज इंजीनियर्स अर्न अ लॉट. सो पेरेंट्स क्या थिंक करते हैं कि अच्छा चलो ये इसको इंजीनियरिंग में डाल देते हैं, आगे क्या होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो बेसिक ये रहेगा. बट द थिंग इज हमारे यहाँ पे ज्यादा नॉलेज नहीं देते हैं. सो 12th के बाद क्या करना है, बस इंजीनियरिंग या हम लोग को मेडिकल. बस. हाँ, या मेडिकल. सो अगर करना है तो इसमें क्या, उसमें भी क्या ब्रांचेस होते हैं. सो इवन पीपल डिडंट नो
पेट्रोकेमिक होता है, केमिकल होता है, और ये सब लोग ज्यादा देखते नहीं है। बस इंजीनियरिंग है, बाकी उसमें ब्रांच क्या करना है वो अपने को पता नहीं। सो इसका नॉलेज अगर होगा तो दैट माइट हेल्प पीपल की। अच्छा, लेट्स से मेरे एक दोस्त थी जिसको जर्नलिज्म करना था पहले से ही, एंड शी वाज सो डिटरमिन्ड फ्रॉम 10th कि दैट शी स्टार्टेड हर 11th इन आर्ट्स एंड शी वाज जस्ट डूइंग जर्नलिज्म थ्रू आउट हर लाइफ। वो अभी भी राइटर है एंड शी इज डूइंग वेल इन हर लाइफ। बट अभी मेरा ही केस था कि आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू बी। तो मेरे लिए सेफ ऑप्शन था इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे। दैट माइट नॉट बी अ प्रेशर बट अ गाइडेंस। बट वो कब पीयर प्रेशर में कन्वर्ट या फैमिली प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है लोगों को पता नहीं चलता। एंड दैट्स वेयर वी डोंट रियलाइज इट, एंड इंजीनियरिंग में जाके 2 साल बाद पता चलता है अच्छा मैंने प्रेशर में आके ये सब कर लिया, which is not the which is not how you should treat peer pressure या family pressure. Yeah. या बट मेरा वैसा नहीं हुआ। मेरा 12th में ना। साइंस ही लेना था मेरे को, सो 11 12 मुझे साइंस में करना था, बट उसमें स्पेसिफिक सीएस चाहिए था, तो मैंने उसमें ले लिया। बट उसमें कुछ नहीं, बेसिक सी प्रोग्राम्स थे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था। बट जब इंजीनियरिंग का आया तो मैंने 3 इडियट्स देखा था, तो मुझे ये बहुत था कि किस साला होता क्या है इंजीनियरिंग में कि लोग इतना ये करते हैं इसको कि ये हार्ड कोर्स है। वो कुछ आईआईटी वगैरह में जाओगे तो ऑब्वियसली वो हार्ड लगेगा तुमको, बट अगर तुम उसमें नहीं जा रहे हो, डिसेंट कॉलेजेस में जा रहे हो, टियर 3 कॉलेजेस में जा रहे हो, तो इट्स अ कम्प्लीटली फाइन कोर्स एंड यू कैन डू दैट। बट मुझे कंप्यूटर्स में स्टार्टिंग से इतना इंटरेस्ट था कि मेरे को उसमें ही जाना था। हाँ। कि भाई इसमें ही जाना, कुछ भी करना है पर इसमें जाना है। क्योंकि मुझे 12th में जब वो प्रैक्टिकल्स होते थे, याद है फिजिक्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो लोगों को कुछ वो जो क्या बोलते हैं वो डिवाइसेस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो हम वोल्टेज वगैरह वाला कुछ वो वेव्स वगैरह जनरेट रेजिस्टेंस के लिए ये करना पड़ता वो कैलकुलेट करना, तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट था। मुझे वो चीजें समझ में ही नहीं आती थी। लाइक व्हेन इट कम्स टू दैट कि मेरा दिमाग हट जाता था कि यार ये क्या है, मुझे इसमें आधी चीजें करते नहीं आ रही है, क्या करना है, क्यों करना है। मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली कोडिंग में, और कोडिंग में पहले से ही था बिकॉज आई यूज टू कोड बचपन से ही, स्टैंडर्ड 6 से आई स्टार्टेड कोडिंग। बट तो लाइक when I entered campus and all, first year tak I was like okay yeah I might settle into this is something I like, but like second year ke starting se I started noting that hey this is not something that I want to do all my life, and uske alawa then I did an internship in coding, and I saw the whole environment and I just felt like this is not something that I would be enjoying. So that's when I decided that hey you know what, I need a new field and something that I actually feel passionate from the inside, that hey this is something I'm confident about being the best at. So that's when I tried different fields. I tried an internship in accounting, and then I tried an internship in supply chain management, and then I finally found marketing, and that's when I decided that this would be my field of choice now. So and that did hamper my academics in the course sense that I'm still stuck in college and this will be my final year now. But it took a long time for my academic to be completed. But at least at the age of 24 now I know what I'm going to do with my life. Rather than there are so many people that I see at the age of 26, 28 who are stuck at in their job, and they are like they want to change but they are stuck because they did their engineering and they didn't do anything different, and now they don't know anything new, and they don't know what they're passionate about exactly. I'm lucky that I found it earlier on, and even though my academics are delayed, at least I can get back on track with the same thing now. So if we're talking about something that you realize in the mid course, it started with me computer science, but मुझे स्टार्टिंग के इजी लगने लगे क्योंकि ये मैंने 12th में पढ़ा था। तो पहला सेकंड ईयर का फर्स्ट सेम बहुत इजी गया, सेकंड ईयर का सेकंड सेम भी बहुत इजी गया, बट जब न्यू सब्जेक्ट्स आने लगे तो उसमें मैं मतलब खुद से देखता था, क्योंकि मेरे को ये जो कोर्सेज थे ये थियोरेटिकल थे और दोज आर लाइक बोरिंग सब्जेक्ट्स, और उसमें मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। बट मैंने लेटर रियलाइज़ किया कि यार मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इनमें कुछ हो नहीं सकता क्या। तो मैंने उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर से कोर्सेज देखना चालू किया, बट मशीन लर्निंग का पार्ट इतना था ही नहीं हमको कि उसमें डिटेल में जा सके, कि इन फ्यूचर उसमें लाइक
अगर मुझे जॉब भी करना है उसमें तो उसमें जॉब मिल सके, क्योंकि यहाँ पे मशीन लर्निंग में मैंने जितना सीखा उसमें सिर्फ क्लस्टरिंग आता है, विच इज अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का कुछ भी नहीं था, बिकॉज सुपरवाइज लर्निंग कंटेन्स अ लॉट ऑफ डेरिवेशन इंटीग्रेशन, एंड वो लोगों को शायद पसंद नहीं है या ज़्यादा हार्ड लगता है उसकी वजह से। तो मैंने ये रियलाइज किया कि यार इसमें नहीं है तो ये और कहाँ हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग द ऑप्शन फॉर माय मास्टर्स इन मशीन लर्निंग इन सीएस एक्चुअली, बट वहाँ पे कोर्सेज है कि मशीन Cool. लर्निंग इज सेपरेट है, Yeah, yeah. कि 2 सब्जेक्ट तो ले सकता है, तो मशीन लर्निंग एंड एआई एक सब्जेक्ट में एक सेम को ऐसा ले सकता हूँ। Mhm. आई गेस ये डिफरेंस, ये चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा आफ्टर अबाउट 3 years when the new educational course will be getting into our whole system. जो अभी नया कोर्स है जहाँ पे 5th से तुम लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या है आगे। Mhm. सो बेसिकली what are प्रॉब्लम में पीयर प्रेशर इज कि वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को गाइडेंस सही से नहीं मिलता। Mhm. बिकॉज जैसे 10th के बाद हम लोग को क्या करना है। मेरा एक भाई है जो 10th से पास आउट हुआ था, एंड वो अभी पास आउट हुआ है दिस ईयर, एंड ही हैड 3 months ऑफ हिज वेकेशंस, और उसमें उसने कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है आगे या क्या क्या ऑप्शंस है, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर था 10th में, पूरे साल भर इतना प्रेशर था कि उसको कुछ सोचने के लिए ऑप्शन ही नहीं रखा। उसको बोला कि वो बाद में सोच सकते हैं, बाद में सोच सकते हैं, एंड ही हैड टू एंजॉय दिस टाइम। बट एक्चुअली यही प्रॉब्लम है हमारे इसमें कि अगर हम लोगों को एजुकेशन दिया जाए 5th से 6th से कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हो तुम लोग, एंड लेट्स से हम लोग के ऊपर वही बस 2 ही चीजें डाली जाती है, डॉक्टर या इंजीनियर, Mhm. और कोई फील्ड्स हमें पता ही नहीं है, फील्ड्स या लेट्स से कोई भी पता नहीं है। अब मुझे जैसा मार्केटिंग एंड ये में मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, बट ऑब्वियसली मुझे एज एन आई डोंट वांट टू परसीव इट फॉर लाइफ, बट इंटरेस्ट है। एंड ये फील्ड मुझे तब पता चला जब मैं बैचलर्स में आया, Same व्हेन here. इट वाज टू लेट। Yeah. या एग्जैक्टली। सो अगर तुम लोग के ऊपर पहले से ही तुम लोग के घर वालों ने बोला, दिस इज नॉट पीयर प्रेशर एज सच, बट जैसे तो आई मीन इट डजंट सीम लाइक अ पीयर प्रेशर, बट इट इज, जहाँ पे तुम लोग को 4th या 5th से या 3rd स्टैंडर्ड से ही लेट्स से तुम लोग को बताया जाता है कि अच्छा ये इंजीनियरिंग में ही होता है, दिस इज इंजीनियरिंग। Mhm. तो हम लोग को एक माइंडसेट बना के रखते हैं कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर छोड़ के अगर कुछ भी बनो तो यू कांट अर्न और यू कांट बी सक्सेसफुल एट ऑल। Yeah. बट जो केस हम लोग को लाइफ एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं. I guess these life experiences should be given before 10th या before making any substantial decisions for your life, जो Yeah. हमें कभी नहीं दिया जाता। एंड यही टाइम पे जब पेरेंट्स अपने हम लोग को एडवाइस करते हैं कि अच्छा ये ले लो, ये ऑप्शन है, Mhm. सो दैट बिकम्स पीयर प्रेशर, बिकॉज उनको क्या लगता है कि फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इट्स राइट कि Yeah. एक बच्चे को अगर तुम लोग को इंजीनियरिंग में डालना है, इट इज सेफर साइड कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा। Mhm. बट उन लोग को ये नहीं समझ में आता कि यू आर नॉट लेटिंग द किड थिंक अबाउट व्हाट हिज फ्यूचर कैन बी। Yeah. सो इंजीनियरिंग करके एक फ्यूचर हो सकता है, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एट द स्टार्ट, कि उतना मतलब पर्सन कैन अर्न मोर देन अ इंजीनियर इफ ही इज डूइंग बीबीए और समथिंग इन मार्केटिंग और फाइनेंस और समथिंग। सीए भी एक ऑप्शन होता है जो लोगों को पता ही नहीं होता। Zomato delivery guy earns more than a software engineer in ओह यस, India. सी उसका इवन पेमेंट है मंथली 25,000 और एक कंप्यूटर स्लैश सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पेमेंट इंडिया में है 20,000। या तो सो अगर यही वही तो डिफरेंस है। एजुकेशन लेके तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं, तो मैं आई एम नॉट डिमोटिंग एनीवन, हाँ, बट ये फैक्ट्स है। बिकॉज ये तुम लोग जब अभी समझो कुछ लोग कॉलेज में है, कुछ लोग कॉर्पोरेट्स में जो है उनको वो समझेगा। अभी पैंडेमिक में भी हुआ ना कि एक आईआईटीएन था, आईआईटी दिल्ली का आई गेस, जिसकी जॉब खो गई थी, तो उसने सब्जी का ठेला शुरू कर दिया एंड ही वाज अर्निंग मोर देन व्हाट ही वाज अर्निंग फ्रॉम द जॉब दिल्ली में। तो दैट एंड इज हैपनिंग टू अ पर्सन फ्रॉम आईआईटी। सी पीयर प्रेशर का चीज कब आना स्टार्ट होता है, जब मार्क्स कम आते हैं, तो फैमिली यस, को लगता है कि ये क्या करेगा फ्यूचर में, कि क्या होगा इसका। द थिंग इज लोगों को 60% आते हैं, 50% आते हैं ना, तो पेरेंट्स स्टार्टेड फोर्सिंग देयर पीपल। अभी 12th का ही पकड़ ले, मेरा एक दोस्त है, तो उसको कुछ तो 60 कुछ तो परसेंट आए,
12th में। उसके डैड को लगा कि क्या होगा, उसको भेज दिया सिविल इंजीनियरिंग में, बट उसको वो करना ही नहीं था। उसने 4 साल निकाल भी लिए उसने भाई ने, पास वास करके, बट अगर उसको एट द एंड वो करना ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो पीयर प्रेशर में आके जो 4 साल वेस्ट किया, वो अगर वो उसके इंटरेस्टेड फील्ड पे लगाता तो वो आज कहाँ से कहाँ होता। हमारी जो the previous generation, our parents वाली generation है, like they are not ready to what you call, most of them are not ready to let the what you call the flow of authority go into the next generation, and they Yeah, are still in that mindset of what they have gone through in their time. Yeah. But the thing is, after like let us move down like 30 years after the partition of India, the situation was at that time that everyone was focusing on that they have to live for food and lodging. The Yep. thing is, when this generation has come, the average middle class right now already has that home and lodging from their parents and everything. So this is the next generation, and right now most of us have that backup. So right now the mindset has moved on. Our mindset has moved on from instead of roti kapda makan ke liye, instead of that we are living for like satisfaction and happiness in our life. But this mindset has not shifted for our parents and our generation, because they are still in that Yeah. mindset that अभी भाई घर बनाना है, रोटी कपड़ा मकान के लिए रहना है. So that वो mindset को shift होने में बहुत टाइम लगेगा अभी. आई गेस पीयर प्रेशर में सबसे सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट आता है सेटलमेंट, जो तुम लोग सेटल हो जाओ, Yeah. विच इज इवन व्हाट माय मॉम टेल्स मी, एंड अभी तक हमारा झगड़ा चलता रहता है. बट देयर इज अ थिंग जहाँ पे द पीयर प्रेशर हैज स्पॉइल्ड द लाइफ ऑफ द पीपल फ्रॉम 20 to 30 years of age. मतलब वो टाइम है जहाँ पे तुम लोग का सबसे बड़ा कुछ करने का ऑप्शन रहता है. सो यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव एजुकेशन, जहाँ पे तुम लोगों ने एजुकेशन लिया है, पैसे तुम्हारे पास है ही नहीं वैसे भी, तुम लोग क्या ही कर लोगे, तुम लोग खर्च नहीं कर पाओगे. you can do so many things on that point of view. और वहां पे तुम लोग रिस्क ले सकते हो. You can have multiple risk, and अगर एक बार क्लिक हो गया वो, then that can go towards much higher things that your parents accepted. But parents usually go for अच्छा तुम सेटल हो जा, फिर तेरी शादी होगी, फिर तेरे बच्चे होंगे. एंड विच इज व्हाट पीयर प्रेशर इज, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पीयर प्रेशर आता है कि शादी कर लो और बच्चे कर लो. एंड विच माई फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम राइट नाउ. उसकी शादी है, आई गेस ही इज 28, एंड उसकी शादी है ये साल या अगले साल. बट ही इज सफरिंग फ्रॉम द प्रेशर की शादी क्यों करनी है. ऑब्वियसली ही हैज अ गर्लफ्रेंड, उसका मतलब उसी से शादी होने वाला है. बट व्हाई प्रेशर हिम, पुश क्यों करना है इतना जल्दी, 1-2 साल बाद और वेट कर सकते, राइट? या उसका भी सपना है कुछ ना कुछ. एग्जैक्टली, खुद पे फोकस, लाइक दैट इज समथिंग दैट आई हैव पुट ऑन माय. मैंने अपने पेरेंट्स को पहले ही बोल दिया कि जब तक आई वोंट हैव लाइक अ स्टैंडिंग करियर ऑफ माय ओन, मैं अपना जब तक कुछ नहीं होगा मेरा, एंड अराउंड द एज ऑफ 30, एटलीस्ट बिफोर, नॉट बिफोर द एज ऑफ 30, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर मैरिज और समथिंग. बट ये चीज मैं अपनी, एक्चुअली द थिंग इज आई एम स्टेइंग इन मेरठ, एंड मेरठ इज काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ टियर 2 सिटी, लाइक तो सब चीजें एक कंजर्वेटिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आ जाता है यहाँ पर आते हैं. एंड व्हाट दैट हैपेंस, मैंने इतने नेबर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स से बोला है कि मेरी शादी कब करोगे, एंड आई एम लाइक थैंक गुडनेस कि उन्होंने डिफेंड कर दिया. दे आर लाइक अभी इसकी उम्र नहीं है. एंड लाइक द फनी थिंग आई एम हियरिंग इज लाइक मोस्ट ऑफ लाइक जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए, एंड मेरा घर यहाँ पर 2 फ्लोर का था, तो व्हेन डैड डिसाइडेड कि दोनों फ्लोर अच्छे से फर्निश किया, बेडरूम वगैरह अच्छे से बनाया फॉर मी एंड एवरीथिंग, and everyone who came to our home, like to nearby neighborhood say, to look at the house and everything, everyone were like तुमने घर में ऊपर वाला फ्लोर खाली क्यों नहीं छोड़ा. and when my mom asked why, बोले दहेज में आएगा ना सारा सामान. Okay, अच्छा. like my mom had to like face palm, and they're like यहाँ कोई दहेज नहीं होने वाला, मैं चुपचाप कोर्ट मैरिज करूंगा, 50 रुपए में शादी होगी और निकले हैं, कोई कुछ नहीं लेना. so thank you for watching, see you in the next episode.